Yes, good morning, beta. Let's continue with the revision of probability. That is a part of data handling exercise 5.3. Last two questions are pending. Complete that question, then we will proceed to the next chapter. Yes, what happened? Book. Where is your book? Write in this from probability number 6. Case study is a question. One statement will be given and 4 MCQs will be there that is based on that statement. जैसे आपका unseen passage होता है ना, you have to read the passage and you have to answer the following 4-5 MCQs. In the same manner, case study will be there from the 3 chapters, any of the 3 chapters. One long question was there and 4 MCQs are there on that on question based. ठीक है? You have to read out the question and you have to give the answer of the following question. छोटा सा क्वेश्चन ही होगा 3-4 लाइंस का, मे बी इट वॉज ऑलरेडी देयर इन योर PT1 एग्जाम. PT1 एग्जाम में था तो सही 4 नंबर का एक क्वेश्चन था, क्यों नहीं था? इफ यू हैव प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑफ PT1 यू कैन चेक इट आउट. इट वॉज देयर. क्वेश्चन था उसके 4 पार्ट से MCQ. ठीक है, ऐसे ही समझ लो जैसे ये कर रहे हो आप, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन लिखा 4 पार्ट्स है, ऐसे ही कोई भी क्वेश्चन. ठीक है, समझ आ रहा है आपको? जैसे आप ये क्वेश्चन कर रहे हो ना, कि क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ दिस एक्सरसाइज, सेम वे में 1 स्टेटमेंट वाज देयर एंड 4 पार्ट्स वर देयर दैट वाज बेस्ड ऑन द क्वेश्चन. कटिंग कर दो बेटा, पूरा पूरा नहीं लिखते हैं, ये देखो उधर उधर ऐसे लिखते, लेस देन 6 ऐसे लिखते हैं. चलो अब लिख दिया, कोई बात नहीं, वैसे ऐसे लिखना. क्वेश्चन नंबर 4 है बेटे. Do next question. Start 5th question. Have you written the syllabus of first revision test? Yes, from this 25th, your revision tests are going to start. So on the very first day, your maths test is there. Okay. So I think 3 chapters are there from. Data handling we have done. Okay. So after this, we are going to start with algebraic expression. Okay, go. Is it okay? Any doubt? Which? 1 minute. Probability of getting a number greater than 6. 6 से greater number 7, 8, 9, 10. 2/5. बेटा greater than 6 ना, 6 से greater 7, 8, 9, 10. 4/10. That is 2/5. Rub it. डस्टर वहां रख दो, उधर 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 उधर. हाँ यहाँ रख. Question number 5 we are doing. In this,
if you have a spinning wheel with three green sector, one blue, one red, what is the probability of getting the green sector? Actually, can you tell me the total outcomes? 5. 3 green, 1 red, 1 blue. The total outcomes 5. Probability of green you have to write. Write down probability of green. Done. If you have done this, you can start with algebraic expression chapter. Read out the introduction, that is theory part that is written in the book. Read out that theory part. At least very short questions can be framed from the theory. So read out the theory part that is given on page number 137. Read it out, hurry up. Yes, everyone. Then I will ask you the questions. (137) यही हाँ यही read करो. Read it out. What are expressions? Expressions are the combination of the numbers and variables that are combined with different 4 operations. Like if I write 2 plus x, so 2 is a number, x is a variable, they are combined with operation plus. So this is your expression. Okay, that is a combination of numbers and variables. Read it out, hurry up. Yes, Abhishek. Coefficient of x in -2x. -2. Yes, Tanmay. Terms of x square plus 5x. How many terms are there? 5 terms. I have asked how many terms are there in x square plus 5x? 2. What are those? X square and 5x. There are 2 terms. One is x square, another is 5x. Next, degree of x cube plus y square. What is degree? What do you mean by degree? राघव क्या नहीं? ईशान, what do you mean by degree? Adish. Very good. Highest power of the expression is known as degree of the expression. Degree means highest power. What is the highest power? 3. Highest power, I said. Degree is 3. Terms की degree पूछे, इसकी 3 है, इसकी 2, but of the expression that is highest of all, that is 3. Factors of 7x cube. Factors of 7x cube. इसके factors क्या होंगे? Factors of 7x cube. बोलो आप.
समीक्षा, हाँ, split it out 7x. These are the factors. You have to split out the terms. What are the factors of 2xy? Two plus कहाँ से आ गया? They are getting multiplied. 2xy. On the basis of the term, there are three types of expression: monomial, binomial, trinomial, and all these are known as polynomials. Like if I write single term x, x square, x cube, y cube, xy square, x square, y square, z square, all are single term. Multiply हो रही है ना, and after multiplication you always get one single answer. So this will be considered as one term. So they are monomial. X plus y, y minus 3, xy plus 4, xyz minus 7x square, x square, y square cube, z square minus 7myz. All are binomial. Actually, this term will be considered one. This is second term. So two terms are there, and the expression that contains single term are monomial, double term binomial, and triple terms are example 7 plus x plus y, 7 minus 3x square minus 4xyz. This is trinomial. Monomial, binomial, trinomial, and all these are known as polynomial. So polynomials are the expression that contain two or more terms. Two or more terms. Examples are given on page number 138. Read out these examples. Monomial, binomial, polynomial. Read out these examples. What are like terms? Tanmay, what is the like term of 2x? बोलो. बोलो. हाँ जी. 2x की लाइक टर्म 3x, 4x, minus 7x, minus 14x, plus 2. कोई भी टर्म जिसमें x हो, y नहीं हो सकता. x के साथ x जैसी लाइक टर्म होगी. What is the like term of 2xy? हाँ जी. Find the like terms. बोलो तन्मय. वन बाय 2x. x x x 1/2 होता रहे, हमें क्या करना है? x तो है ना, लेकिन डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए जैसे इसमें है. ये नहीं है लाइक टर्म. क्यों? क्योंकि ये ऊपर जाके क्या बन जाएगा? माइनस बन जाएगा ना, और वो पॉजिटिव 2 है. तो दीज आर नॉट लाइक टर्म बट दीज आर लाइक. तभी तो सोच के लिखा है इतना. ठीक है, क्लियर है? हाँ जी, सच में क्लियर है. चलो फिर एक और आंसर दो. लाइक टर्म बोलो इनमें से, है भी सही कि नहीं? हाँ बोलो बोलो.
क्या लिखूं? लिखूं? ये लिखना है? क्यों लिखना है ही नहीं राइट टर्म, क्यों लिखे? ये एक्स वाई है, ये एक्स वाई स्क्वायर है। इसकी राइट टर्म बोलो पहले, इसकी कौन सी है? और इसमें से ऐसे तो बहुत सारी, इनमें से बताओ ये क्यों लिखा है फिर मैंने? 7, ठीक है, नहीं ठीक, बोलो फिर क्या करो? दांत अंदर कर हैं? अरे ये पूरी टर्म है, बोलो ना क्या लिखा है? माइनस, ठीक है, ये लाइट टर्म। अब एक और भी है इसमें, अभिषेक आप बोलोगे? बोलो बोलो जल्दी, ऐसे नहीं चाहिए, साइलेंस नहीं चाहिए, बोलो जो भी समझ आता है बोल दो। बोलो क्या हुआ? वाई, वाई स्क्वेयर एक्स और, हाँ जी दे आर सेम। ये एक्स वाई स्क्वेयर है, ये वाई स्क्वेयर एक्स है, और मल्टीप्लीकेशन क्या होती है? कॉम्यूटेटिव। एक्स वाई लिखो या वाई एक्स लिखो, एक ही होता है ना। तो ये और ये क्या है? सेम है, बस इतना ही है। ये फर्स्ट पेयर है, ये अलग आएगा, ये फर्स्ट पेयर है, ये सेकंड पेयर है, 2 पेयर्स हैं बस। उसमें 3 थी, कोई बात नहीं, जितनी है लिख दो। अगर आपसे वैसे पूछे फाइंड द लाइन, ऐसे भी आ सकता है, जैसे ये दिया हुआ है सपोज करो। अच्छा जैसे आप मेरे से अभी पूछ रहे थे ना कि केस स्टडी, सपोज करो यही क्वेश्चन है केस स्टडी। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछेगा व्हाट इज द लाइक टर्म ऑफ 2xy, ऑप्शंस दी होंगी तो ये उसकी लाइक टर्म होगी। फर्स्ट ऑप्शन ये होगी, हाँ जी ऑप्शंस होंगी, एमसीक्यूज होंगे 4। व्हाट इज द लाइक टर्म ऑफ 14xy स्क्वायर, तो आंसर इज x स्क्वायर y। What is the degree for third question? What is the degree of this expression? No, 3, 2 हो गया इसका, ये 3, ये 2, तो मैक्सिमम कितनी है? 3, तो डिग्री ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज 3। क्लियर है? और भी पूछ सकते हैं, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? 5। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? 5 टर्म्स। तो बस ऐसे क्वेश्चन आएगा, ऐसे एक बड़ा सा क्वेश्चन होगा, कोई भी स्टेटमेंट सम, ऐसे 4 पार्ट्स होंगे साथ में, ठीक है। अच्छा अब एक और बात, नहीं चलो आपका नहीं ना, ठीक है, ये क्लियर है। ऐसे कोई भी क्वेश्चन आपसे, डिग्री इज द हाईएस्ट पावर, इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई क्या है? कोफिशिएंट ऑफ, हाथ नीचे करो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई, इसका कोफिशिएंट क्या है बोलो? है? मैंने नहीं करना क्योंकि आपका ध्यान ही नहीं था, अभी राखी के बारे में ही सोच रहे हो, फिर क्या सोच रहे हो बैठ के? बैठे यहाँ हो, फिजिकली प्रेजेंट हो, मेंटली कहीं और हो, सुन ही नहीं रहे हो। यही 2 बार पूछ लिया, ये बोलो, फिर भी नहीं सुन रहे, कहते रिपीट करो। आप बोलो राघव, क्वेश्चन रिपीट करो पहले। हाँ जी क्या है? ये दोबारा ऐसे मत करिए। 1, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई स्क्वायर एक्स इज 1 एंड कोफिशिएंट ऑफ, ये और ये सेम है, ठीक है। तो अभी तो मैंने वैसे ही पूछ लिया, वैसे दोनों सेम है तो दोनों को ऐड भी कर सकते हैं, 15 बनेगा कोफिशिएंट। एक, हाँ सेम है, x इंटू वाई करो या y इंटू एक्स करो सेम होती है, बिकॉज मल्टीप्लीकेशन इज कॉम्यूटेटिव, ठीक है। सिट डाउन, पहले ना सीधे बैठो, पहले तो बैठना ही नहीं आता, पढ़ना तो बहुत दूर की बात है, सीधे बैठो आप भी। चलो एग्जाम्पल नंबर 1 स्टार्ट करो, पहले ये करो, पेज नंबर 139 का ट्राई दीज करो जल्दी से, और पेज नंबर 138 का ट्राई दीज उधर से बोलना शुरू करो। राघव बोलो, पेज नंबर 138 का सेकंड ट्राई दीज बोलो, -z+5, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। सिट डाउन ईशान, क्वेश्चन बोलो।
फर्स्ट क्वेश्चन सेकेंड पार्ट। कल से बुक के बिना मत आना। x प्लस वाई प्लस जेड टाई बोलो। एक होता ये एक है, 3 टर्म्स है। नहीं हम मजाक कर रहे हैं। 3 टर्म्स आर देयर सो इट इज ट्राइनोमियल। नेक्स्ट बोलो हरमन क्वेश्चन। हाँ जी हाँ जी बोलो लास्ट। आप बोलो क्वेश्चन बोलो पहले। आप बोलो नेक्स्ट। मोनोमियल अगर 17 के साथ x भी आ जाए तो 17x मोनोमियल। 17 के साथ m n p q सब आ जाए मल्टीप्लाई में तब भी मोनोमियल। सिंगल ही है ना, मल्टीप्लाई में जितनी मर्जी टर्म लिख दो मोनोमियल सिंगल रहता है। जब प्लस के साथ कुछ और आ जाता है तो टर्म्स इंक्रीज हो जाती है। टर्म्स इंक्रीज कब होती हैं? जब प्लस या माइनस के बाद कुछ और आ जाए तो, अदरवाइज नहीं। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल इज 15xyz अपॉन mnpq। कौन सा ये? मोनोमियल। कंफ्यूज क्यों हो गए? मल्टीप्लाई और डिवाइड में जितनी मर्जी टर्म है दैट विल बी कंसीडर्ड वन। साथ में कुछ और आ गया तो बन गया बाइनोमियल। टर्म्स ज्यादा कब होती हैं? जब प्लस या माइनस के बाद कुछ और आ जाता है तो, अदरवाइज मल्टीप्लाई डिवाइड में दैट विल बी कंसीडर। आपको पता तो है, आप बड़ी सारी टर्म लिख दो, आप 200 को 5 से डिवाइड कर दो, कटिंग करके एक ही तो टर्म आएगी तो दैट विल बी कंसीडर्ड वन टर्म। डेसिमल में आएगा तब भी वन कंसीडर होगी, फ्रैक्शन में आएगा तब भी वन कंसीडर होगी। डिवाइड करो या मल्टीप्लाई दैट विल बी कंसीडर्ड वन टर्म, but after addition or subtraction that will increase your number of terms. Clear? चलो अब बोलो नेक्स्ट। 139 का ट्राई दीज बोलो। What are the two like terms of 7xy? Two like terms बोलो 7xy की। इसमें से नहीं बोलनी, अपने आप बोलनी है अपनी तरफ से। ये क्या है? ये क्या है? ये पीछे करो इसे। रुक जाओ, देंगे चांस अभी है। हाँ इतना क्यों गिर रहा है नीचे? सीधा हो, हाँ बैठ जाओ। नेक्स्ट बोलो। 7xy की टर्म बोली है इसने, 2xy और 14xy। कोई भी बोल सकते हो, 9xy माइनस 10xy माइनस 14x। हाँ जी, -6mn² भी बोल सकते हो, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी, अपॉन में भी बोल सकते हो 2/3mn², वो भी लाइक टर्म है। आगे नंबर ही चेंज हो रहा है ना, mn² तो है ना, तो सेम है। आप बोलो फर्स्ट 2l 3l और 4l। ठीक है, हाँ घर का राज है, जो मर्जी लगा। नंबर तो इसकी लाइफ टर्म बतानी है, इसके जैसी वेरिएबल सेम होनी चाहिए, नंबर कोई भी लगा दो। नंबर दिए नहीं हुए, अपनी तरफ से बताने एग्जांपल। हाँ जी, एग्जांपल नंबर 1 स्टार्ट करो। एडिशन इट इज टू लेंथी चैप्टर, सो आप यू हैव टू बी वेरी क्विक। जल्दी करो फटाफट, ऐड करो दोनों क्वेश्चन 1 और 2, एक ऐड का एक सब्ट्रैक्ट का। हाँ जी, देन वी विल स्टार्ट फर्स्ट एक्सरसाइज। Addition done. Example. Okay, who has put this page here? आप लेके आए थे, प्रिंट लेकर आए? क्या कह रहे हैं? Syllabus of revision test of mathematics.
किसको? लाइक टर्म्स को लाइक के साथ ऐड करना है, अनलाइक को यू विल राइट एट वन कॉर्नर। डन? एग्जाम्पल नंबर 1 डन? जल्दी करो। इफ डन देन स्टार्ट एक्सरसाइज 9.1। यस लास्ट जिया बोलो बेटा। 9.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द टर्म्स देयर कोफिशिएंट। इसमें से टर्म बोलो कौन सी है, फर्स्ट में से कितनी टर्म्स हैं? 2। बोलो टर्म्स कौन सी हैं? -3zy। कोफिशिएंट बोलो, फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट, सेकंड टर्म का -3। यस अनन्या। एक्स स्क्वेयर ऐड नहीं आएगा साथ में, 1, x, x square. There are 3 terms, 1, x and x square, and coefficient is that is the number with variable. 1 is constant, 1 नहीं लेंगे, x का कोफिशिएंट 1, x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1। ठीक है समीक्षा बोलो नेक्स्ट। -4 कोफिशिएंट 4 -4 एंड 1। टर्म्स कितनी है? कोफिशिएंट 3 नहीं आएगा, 3 इज कांस्टेंट। कोफिशिएंट हमेशा वेरिएबल का होता है। आर यू गेटिंग मी? कोफिशिएंट हमेशा वेरिएबल का होता है और 3 जो है वो कांस्टेंट है, वो नहीं लेंगे। अनन्या एनी डाउट? बोलो ईशान, सही तरीके से बोलना। यही तो नहीं पता आपको, आप सुन क्या रहे हो? वो आंसर दे रहे हैं, आप सुन नहीं रहे। हाँ जी बैठो बेटे बैठो, बैठ जाओ। पता ही नहीं है बोलना क्या है, जो मर्जी चलो बोलो। x का कोफिशिएंट नहीं 1/2, x का कोफिशिएंट 1/2, y का कोफिशिएंट और xy का कोफिशिएंट -1। हाँ जी नेक्स्ट हरमन आप बोलो। राघव नेक्स्ट। ये क्या बोला जो भी बोला है? नहीं क्या बोला, ये आंसर था कि क्वेश्चन था? टर्म्स बोलो फिर पहले, कोफिशिएंट पे कहाँ चले गए? -0. प्लस नहीं बोलना साथ में, 3 टर्म्स हैं, 0.3a, -0.6ab, 0.5b, कॉमा डाल के अलग लिखने। 3 टर्म्स हैं। अगर प्लस लिखोगे ना ऐसे ही सेम, कुछ नहीं मिलना, वो तो क्वेश्चन ही कॉपी कर दिया आपने। कॉमा डाल के 3 टर्म्स लिखनी है, या ऐसे टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3 ऐसे लिख देना। कोफिशिएंट बोलो तन्मय, कोफिशिएंट बोलो 6th पार्ट के। फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट क्या है? बोलो कोफिशिएंट बोलो इसका। हाथ तोड़ के ना दूसरे हाथ में दे देना। पता ही नहीं है, पता नहीं क्या सो रहे हैं। बोलो ये तूने बड़ी नई बात बताई, गलत है।
Coefficient of A is 0.3. Coefficient of AB is minus. रिकॉर्डिंग चल रही, क्या करके रहे हो? थर्ड इज 0.5. जब चांस दो तब बोलना नहीं, वैसे शुरू हो जाना है. क्यों 0.5 को क्या बीमारी है? वो आएगा नहीं साथ में. A और B के आगे जो नंबर दे रखा है दैट विल बी योर कोफिशिएंट. तो 1 कहां से आ गया? 0.3 0.5 क्या है? नंबर ही तो है. क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करो. एडिशन कर लेना अपने आप. क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट. फर्स्ट पार्ट 3 का 9.1 exercise question number 3 first part. AB minus BC, BC minus CA, AB minus BC. ऐड करना है इनको. कलेक्ट द लाइक टर्म्स. CA, CA माइनस AB. चलो ऐड करो. AB AB के साथ ऐड होगा, BC BC के साथ और CA CA के साथ. लाइक टर्म्स ऑलवेज ऐड एंड सब्ट्रैक्ट. मल्टीप्लाई में और डिवाइड में अनलाइक टर्म्स ऐड भी हो जाती है, सब्ट्रैक्ट भी हो जाती है, डिवाइड भी हो जाती है. लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमेशा लाइक टर्म्स की होती है. अगर मैं आपको कहूँ A को B के साथ ऐड करो तो नहीं होता. आंसर इज A प्लस B. A को A के साथ ऐड करना हो तो आंसर, वेरी गुड. A को A के साथ ऐड करना हो 2A और A को A के साथ मल्टीप्लाई करना हो तो A स्क्वायर. ठीक है. ऑल दीज टर्म विल कैंसिल आउट.